Everyone, so we are sitting in Chandigarh today, and with me is Sanyam, who's come from Norway, and he's pursuing his higher education in that in computer science. And आप लोग already you people are associated with the you are aware about Sanyam. He's associated with Europedia, Yeah, and he keeps on making a lot of videos related to higher education there. So welcome to Chandigarh, thank you, sir. Sanyam. Yeah. Thank you, sir. So, Sanyam, this my entire interaction with you is a detailed interaction, and that is the purpose is to tell the prospective students who wants to go for higher education abroad about the opportunities there. Yes, sir. You were also part of some prestigious universities in India. You Definitely. graduated from Dehradun, and then you went to IIT Jodhpur, Yes, sir. and then you went to this university. Yeah. So I'll be asking you a couple of things related to that also, Sure, sir. sure. So we start with your brief background, some academic background. Yeah. Yeah. Mm. So, considering my background, I completed my Bachelor's of Technology in Computer Science Engineering from UPES Dehradun. There, I completed Computer Science and Retail Automation was the specialization, and it was finished in 2019. Then उसके बाद फिर sir, I tried for GATE. I prepared Mm. for GATE exam in 2020 and फिर मेरा गेट क्वालिफाई हो गया और मुझे आईआईटी जोधपुर में डायरेक्ट पीएचडी का अपॉर्चुनिटी मिला जो बेसिकली कोविड पीरियड का दौरान वो था। तो वो मैंने पूरा एजुकेशन घर से किया मोस्टली Mm. और लास्ट के 4 मंथ्स में आईआईटी जोधपुर गया था फिर। Hmm. Acha, Sam, now UrPD is the one of the largest platforms actually, which mentor students for higher education, especially for PhD. We are the only platform, if I'm not या wrong. या तो स्टूडेंट्स को पीएचडी में जाना, ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी एक टर्म है जो हमने क्वाइन एग्जैक्टली किया था कुछ साल एग्जैक्टली पहले। एग्जैक्टली सो डायरेक्ट पीएचडी आप जोधपुर में कर रहे थे, और जो एक वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जैक्टली आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जोधपुर में, आईआईटी जोधपुर में, वंडरफुल प्रोफेसर्स एंड वेरी गुड थिंग्स, या but then you prefer to go to Norway for MS program, यस यस so I want you to give very very honest explanation of this shifting या from PhD program in IIT Jodhpur to MS program in Norway. Okay, I would say PhD के लिए I was not prepared exactly when I went to Jodhpur because I was not even sure that I wanted to pursue my research in that particular area. I Hmm. was trying to explore multiple avenues such as machine learning, deep learning, then maybe cyber physical systems. Then I was also interested in the usage of machine learning in cyber physical systems, that is federated machine learning and all those things. तो मेरा इंटरेस्ट मुझे उस वक्त अच्छे से नहीं पता था इवन तो मैंने गेट क्वालिफाई किया देन आई वाज लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग बट वहाँ जाके आई रियलाइज कि ओके मुझे मशीन लर्निंग पढ़ना है और मुझे मशीन लर्निंग ही अच्छे से परस्यू करना है Hmm. और इवन आई वाज पार्ट ऑफ वेनेट्स लैब इन आईआईटी जोधपुर जो बेसिकली काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने बना रखा है वहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह सब है Hmm. बट आई वाज प्रीटी श्योर कि मुझे मशीन लर्निंग में कंटिन्यू करना है तो Hmm. दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हाँ मुझे आई गेस कोर्स वर्क मैंने कंप्लीट किया था एंड देन कोर्स वर्क के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ओके दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू परस्यू माय future research in machine learning or deep learning. Hmm. Then there were some minor what do you say instances which made me realize okay there were environmental factors. As you know, Jodhpur is very hot climate, right? Hmm. And being gaining all my education from Dehradun, I was not ready at all to go to Jodhpur, I guess. Hmm. And it was pretty hot there. Hmm. Third reason I think of is about resources. Resources not only not only Hmm. monetary or Hmm. others, but resources are like a collective term for your every aspect that is associated with your research. When Hmm. it comes to visiting a conference, whether you are you are interested in some field, let's say Hmm. synthetic biology or artificial life, and you know that okay this is the conference that you want to visit, but there are always crunch of resources, I guess. Hmm. So those were some of the factors that made me realize okay I need to rethink whether I should continue PhD here Hmm. or whether I should go for another research program. Hmm. And for another research program, it's pretty hard to Hmm. at least get direct PhD program in Europe. Hmm. And I was pretty sure कि मुझे यूरोप ही हायर एजुकेशन परस्यू करना है Hmm. so in that sense okay let's take a step back. It's okay, I mean we have a long life. Hmm. I have realized ki okay it's completely okay to rethink
take a step back and again energize yourself and start again. Hmm. So that's why I dropped the PhD program, and then I joined this master's program. Okay. And this master's program is like applied computer science, so it's a blend of research and Hmm. applied technologies. Hmm. So yeah. Okay, Sam. Now, Indian students have a lot of opportunities. You have written GATE, and you are part of post-GATE counseling activities Exactly. of your PDI, and then later on you are part of this entire Yeah. mentoring part of students. I mean, going for abroad. तो आपको दोनों का आइडिया है. Exactly. अब GATE is annual ritual for students in India. They write this exam, they get the score and all. I'll ask you a very simple question. And for the last year, your PDF first time opened the platform for students who have GATE score, Yeah. who may not have GATE score, Yeah. to think of opportunities in India and abroad collectively. True. We are the only organization, let me tell you, Sam, and you are already aware, who provide opportunities to students both in India and abroad, True. both through GATE as well as GRE. मतलब एक स्टूडेंट जो गेट लिखता है, अगर सपोज उसको इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और टेबल के ऊपर 4 अपॉर्चुनिटीज और भी है, तो ही कैन टेक द बेस्ट वन. Exactly. एंड दैट इज वेयर वी नो वी मेंटर स्टूडेंट्स कि आप अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करो Yes. एंड चूज द बेस्ट वन, Exactly. बिकॉज मुझे एंटायर एक ग्लोब इज अ वीडियो विलेज. सर, मुझे आपकी एक बात याद आ रही है सर, एक वीडियो में शायद आपने ही बताया था कि गेट होता है तो भी अच्छा, नहीं होता है तो और भी भी अच्छा. अच्छा, और भी और भी अच्छा. अच्छा. राइट. यस. तो मुझे लगता है कि वो आई गेस बहुत ट्रू है. उसका रीजन बता रहा हूँ ना Yes, सैम. sir. सी गेट इज 3 hours activity, True. right? You are very well prepared, and suppose that day is not your day, True. तो आपका नहीं क्लिक हुआ, does not mean you keep waiting for years after years. Exactly. And I tell you Sam, one more thing, because URPD is also largest platform for interview guidance. तो मैं देखता हूँ कि 5-6 साल से स्टूडेंट वेट करते हैं गेट क्वालिफाई होने का, Right. अच्छे स्कोर का, एंड PSUs का, so that they can go it. And I strongly believe that this is a huge wastage of national resource. अब आप सोचो सेम आफ्टर बीटेक वेटिंग फॉर 5 years only for गेट टू क्वालिफाई. Exactly. तो उससे अच्छा तो ये ना, आप MS में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहां चले जाओ, अब्रॉड चले जाओ, Right. या आप 4 ऑप्शंस रखो जो बेस्ट है उसमें चले जाओ. Definitely, So sir. what is your take on this particular thing, that okay, the moment you have written GATE, now if you're looking for higher educational opportunities, explore for India also and abroad also, Right. जहां बेस्ट मिलती है वहां चले जाओ. What is your take on that? सो सर, मुझे ना मेरा खुद का टाइम याद आ रहा है, सितंबर 2020 का, जब बेसिकली मेरा एडमिशन हो चुका था जोधपुर में. बट तब मैं बहुत खुश हो रहा था एक्चुअली, और खुश होने वाली बात है सर, IIT में IIT easily. जोधपुर, yes. एग्जैक्टली. बट और सर जोधपुर मैंने सुना बहुत फैसिलिटीज देता है, एग्जैक्टली एयर कंडीशनर. एग्जैक्टली सर, IIT जोधपुर में AC रूम्स है सर. राइट. बट सर लेटर ऑन मुझे 2 years के बाद अब मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे लगता है कि उस दौरान मुझे और भी ऑप्शंस ऑप्शन ओपन खोलने करने चाहिए चाहिए थे. ऑप्शंस मतलब ये COAP और CCMT के नहीं, बेसिकली अब्रॉड का भी. अब्रॉड के बेसिकली. तो अब्रॉड के एसेंस में मैं उसी वक्त अप्लाई कर सकता था, जो मैंने 2 साल बाद नॉर्वे के लिए अप्लाई किया, वो मैं 2 साल पहले कर सकता था. और काफी अच्छे से मैं ऑलरेडी मतलब मास्टर्स कंप्लीट कर चुका होता, और मैं PhD ऑलरेडी एनरोल्ड हो रखा होता. तो क्या लगता है आपको, व्हाट तो स्टॉप्स स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्सप्लोरिंग दीस ऑप्शंस? मुझे लगता है सर, वो गेट में ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, उनको लगता है कि बस गेट ही सब कुछ है अब. बट गेट तो सर हम जानते हैं, ये बिटर ट्रूथ है कि ओनली मतलब 15% ही क्वालिफाई करने वाले हैं. और आपका अगर 90% ऐसे प्लस नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, और इवन बाहर भी अप्लाई नहीं कर पाओगे उससे. तो इस बार एक और चीज हमने ऑब्जर्व किया इसमें सेम, दैट students who got option without GATE in some self-sponsored programs in reputed institutes in India, and they were costing 14 lakh, 15 lakh or 12 lakh. Students explored opportunities in countries like Germany also. True. So then when they compared it, and ROI is a term like return on investment, they found that okay, foreign universities, especially German universities, may give me better ROI and international exposure. So students chose that. Last year का trend मैं आपको बता रहा हूँ कि they took that particular opportunity. Yes, sir. More the opportunities, better you can choose, right? Yeah, exactly. That is what students did. और सर ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आई मीन इट्स ओके टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट. आपको पता है आप थ्रू आउट नहीं हो एजुकेशन में, आप नहीं ला पा रहे हो, नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो चीजें, आपको पता लग जाता है कि आप वेदर यू आर क्वालिफाइंग और नॉट. तो इट्स ओके टू एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स एज वेल, कि आप ऑलरेडी एक गाइडेंस ले सकें, या फिर आप ऑलरेडी माइंड मैप बना लें कि ओके मैं इसके साथ साथ ये सब अप्लाई करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट ईयर अगर मेरा गेट में नहीं होता है तो ओके आई विल बी हैविंग मल्टीपल ऑफर्स एट द सेम मोमेंट.
अगर हम्म मुझे सीईओपी में मनचाहा नहीं आईआईटी मिला या सीसीएमटी में मनचाहा एनआईटी नहीं मिला, ओके, बट मेरे पास तो फॉरेन अपॉर्चुनिटी होगा, तो हम्म मैं डेफिनेटली इसके भरोसे नहीं हूँ, राइट? हम्म तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है हम्म बच्चों को पता होनी, मतलब। अच्छा, एक और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा दैट यू वर प्रोसेस ऑफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ पोस्ट गेट यस काउंसलिंग सर, आल्सो। डेफिनेटली। आपने गेट लिखा और उसके बाद आपने अप्लाई किया एंड यू गॉट अपॉर्चुनिटी। आपने बाहर के लिए भी अप्लाई, नाउ यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट आल्सो। यस सर। Can we compare these two? I mean, admission in India, admission abroad, difficulty level scale के ऊपर कुछ आई comparison वुड हो से सकता है? डिफिकल्टी लेवल तो इंडिया में ज़्यादा है। अच्छा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सर। ओके। प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि आपको मतलब एक तो महीने-महीने वेट करना होता है डेफिनिटली। हम्म जैसे सीईओपी और सीसीएमटी वगैरह हम्म है, आपको हर एक आई इवन सीईओपी में तो और भी ज़्यादा दिक्कत है कि आपको हर एक आईआईटी में अप्लाई भी करना है। हम्म बट काफ़ी सारे जो एटलीस्ट मास्टर्स के लिए जो मैं बता रहा हूँ, तो हम्म काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो सेंट्रलाइज़्ड काउंसलिंग जैसा जैसे सीसीएमटी है, वैसा ही पोर्टल रहता है उनका, हम्म जो उन्होंने काफ़ी ईज़ी कर रखा है। हम्म ये उसी पोर्टल पे आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम्म और कुछ कुछ जो होते हैं, तो वहाँ पे आपको बेसिकली हार्डली 5-6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं हम्म और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं और हम्म वहीं पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। तो हम्म है, बट हाँ, जर्मनी के लिए प्रोसेस थोड़ा-सा टीडियस रहता है बच्चों के लिए, हम्म क्योंकि वहाँ पे उन्हें यूनी असिस्ट भी करना होता है। हम्म फिर यूनी असिस्ट के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल पे भी करना होता है। हम्म कई बार उनको डॉक्यूमेंट्स फिज़िकली सेंड करने होते हैं। हम्म तो हाँ, टीडीएस हो सकता है प्रोसेस, बट उसके उसमें हाँ, या तो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो खुद से कर सकते हैं, नहीं हम्म तो एक गाइडेंस ले सकते हैं अच्छे से, हम्म जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है लोग, राइट? हम्म और ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें तो बेटर है, बिकॉज़ हम्म आपके पास डेफिनिटली टाइम नहीं होने वाला है एंड में। हम्म जर्मनी का प्रोसेस जैसे तो 1 महीना डिज़र्व करता ही करता है, वहाँ हम्म पे 1 महीना चाहिए ही चाहिए आपको। हम्म फिर अगर आप स्वीडन में अप्लाई कर रहे हैं, तो स्वीडन में आप ठीक है, जल्दी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज़्ड काउंसलिंग है वहाँ पे। हम्म बट ट्रेड ऑफ है सर बेसिकली। हम्म बट मुझे फिर भी एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस। Hmm. अच्छा, एक Sanam, I'll discuss with you like one thing which stops Indian students from exploring opportunities abroad is like the fees of foreign universities, जो high fees है, और दूसरा कि उनसे एग्जाम्स नहीं निकलेंगे लाइक IELTS, GRE एंड ऑल। हुँ। इन दोनों का apprehensions का what is the answer to these two? ओके, तो अगर एग्ज़ाम्स की बात है तो इंडिया में एक स्टूडेंट ऑलरेडी इतना रिगोरस एग्ज़ाम प्रोसेस के थ्रू जाता है, वो अपने प्लस 2 10th 11th-12th में इतना रिगोरसली हो जाता है कि वो Hmm. जीआरई तो उसके लिए बहुत ईज़ी है, मतलब Hmm. जीआरई, आईएलटीएस ये सब बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्स Hmm. हैं, अगर Hmm. उससे कंपेयर किया जाए, मतलब। Hmm. फिर जो बच्चे गेट दे रहे हैं, जो बच्चे Hmm. ऑलरेडी बीटेक कर रखे हैं, Hmm. उनके लिए तो मतलब डिफ़िकल्टी होनी ही नहीं चाहिए आईएलटीएस और ये जीआरई। Hmm. Hmm. तो मुझे लगता है सबसे पहले स्टूडेंट को आईएलटीएस पे फोकस करना चाहिए, Hmm. बिकॉज़ आईएलटीएस तो वर्ल्ड वाइड चाहिए ही चाहिए। Hmm. जीआरई इज़ स्टिल अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चाहिए और Hmm. 1-2 अदर यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए। Hmm. तो जीआरई आप फिर भी होल्ड कर सकते हो, अगर Hmm. आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत Hmm. ज़्यादा रिसोर्सेज़ लग रहे हैं, तो Hmm. एटलीस्ट आईएलटीएस तो फिनिश करना ही करना है। Hmm. और आईएलटीएस का भी सर ऐसा है कि बैंड, अगर बैंड देखने जाएँ तो हम 6.5 जनरली Hmm. एक एक्सेप्टेबल होता Hmm. है, Hmm. बट 7 इज़ ऑलवेज़ सेफ। Hmm. तो 7 के लिए जनरली बच्चे 15 दिन 20 दिन प्रिपेयर करते हैं। Okay. अगर अगर आपके पास कोई मेंटर है तो। Hmm. अदरवाइज़ खुद से कर रहे हैं तो डेफिनिटली कुछ कह नहीं सकते उसमें, Hmm. उस Hmm. केसेस में। Hmm. So same, what difference do you find between the education system of India and Norway? ओके, सर सबसे मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे रिलैक्स्ड है थोड़ी। Hmm. आपको आपको परेशान नहीं करते बेसिकली, इस सेंस Hmm. में कि इस वीक आप क्विज़ दे दो, आप सीक्रेट क्विज़ दे दो, या Hmm. फिर Hmm. आप सीक्रेट असाइनमेंट दे दो। Hmm. आज प्रोफ़ेसर रैंडमली आपसे ऐसे नहीं बोलते कि सरप्राइज़ क्विज़, सरप्राइज़ टेस्ट, ऐसा नहीं है सर वहाँ पे। Hmm. और काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड होती है पढ़ाई वहाँ पे। Hmm. जैसे कि एक रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, Hmm. आप जो पढ़ रहे हैं उसका। Hmm. फिर लैब्स रहती हैं वहाँ पे, हर Hmm. चीज़ की लैब होती है। Hmm. तो ये सब माइनर माइनर चीज़ें हैं। Hmm. बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो डिपार्टमेंट का सपोर्ट होता है, मतलब Hmm. आपको डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है वहाँ पे, एज़ अ Hmm. स्टूडेंट भी और एज़ अ असिस्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट काम करता है वहाँ पे, Hmm. स्टूडेंट असिस्टेंट, तो उसको भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है वहाँ पे। Hmm. तो सपोर्ट का मतलब है सर कि ये ना, अगर आप में पर्सनल इंटरेस्ट है, जैसे Hmm. कि मान लो मुझे कोई कॉन्फ्रेंस जॉइन करना है, Hmm. खाली अटेंड करना है मुझे, मुझे Hmm. जानना है कि ये ना कैसे वहाँ
पे क्या क्या टेक्नोलॉजीज नई हम्म, इवॉल्व हो रही हैं मशीन लर्निंग में या हम्म, आर्टिफिशियल लाइफ में, हम्म, तो डिपार्टमेंट डेफिनेटली आपको सपोर्ट करता है ऐसे हम्म, केसेस में। हम्म, तो ये चीज़ें और डिपार्टमेंट ही एक्चुअली प्रमोट भी करता है कि हम्म, आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करो, हम्म, आप इस पर्टिकुलर जाके पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में पोस्टर प्रेजेंट करो। हम्म, तो ये सब चीज़ें सर है ना, एक एक रिसर्चर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म, और एज ए स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये चीज़ें आपके फ्यूचर में ओपन रखती हैं डोर्स। हम्म, जैसे कि अगर आपको बेसिकली मास्टर्स के बाद आपको अगर पीएचडी में भी जाना है, तो हम्म, ये सब चीज़ें आपको शोकेस करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। हम्म, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट ये वेरी चीज़ें मच, इंडिया में मैंने नहीं हम्म, देखी हैं, जो हम्म, इंस्टीट्यूशंस इन चीज़ों में लैक करते हैं। ओके सैम, व्हाट अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज? आई मीन हायर एजुकेशन करने के बाद अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं नॉर्वे में? सर मैं नॉर्वे तो नहीं बोलूँगा, कलेक्टिवली यूरोप बोलूँगा मैं। ओके। क्योंकि नॉर्वे जैसा आप जानते हैं ऑलरेडी हम्म, बहुत कम पॉपुलेशन है, हम्म, तो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग इतनी वो हम्म, सब हम्म, रिसोर्सेज भी हैं, हम्म, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हम्म, बट यूरोप में आपके पास ये रहता है कि आप अगर किसी यूरोपियन नेशन में चले गए, तो हम्म, आपके पास एक कॉरिडोर तो ओपन है कि लाइक ना, हम्म, यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल एवेन्यूज हम्म, एंड हम्म, एंड दे ऑल्सो सी कि आप आए हैं इतना दूर और हम्म, ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो हम्म, दे नो ऑलरेडी कि ये तो इंसान ऑलरेडी यहाँ पे है हम्म, और वो छोड़ेगा नहीं, मतलब अगर हम्म, मैंने इसको ऑफर दे भी दिया तो ये हम्म, ऐसा नहीं है कि एंड मोमेंट पे ना बोल देगा। हम्म, बिकॉज होता क्या है सर, दे कॉल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, ओके, हम्म, दे गिव ऑफर देयर, बट हम्म, इंडिया में कुछ स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, टेंड करते हैं कि ये ना, नॉर्वे है, डार्क है, डिप्रेसिंग है हम्म, और आईसी है पूरा, तो हम्म, मैं तो नहीं जा रहा। और हम्म, फिर बच्चे ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितने सारे रिसोर्सेज लगे ऑलरेडी। एक हम्म, प्रोफेसर को कितनी फंडिंग एक्वायर करनी पड़ी है, कितने बहुत सारे हम्म, प्रोसेस के थ्रू अंडरगो करना पड़ा है, हम्म, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ा है, हम्म, तो वो प्रोसेस तो पूरा वेस्ट हो गया सर। तो हम्म, इसीलिए वो अवॉइड करते हैं कि रादर देन जंपिंग फॉर एनी रैंडम स्टूडेंट फ्रॉम फार कंट्री, हम्म, दे प्रेफर द लोकल स्टूडेंट्स। तो ओके, ऐसे केसेस में जो लोकल स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोकल जाके पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है बहुत इजीली, ओके, अगर आप वो पीएचडी करना चाह रहे हैं या जॉब mm. करना चाह So रहे you're हैं। giving your example like if you're doing MS there, या then getting into PhD is far easier. या 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 Okay. या And you get good scholarship in PhD and all? यस सर, डेफिनेटली Mm, डेफिनेटली पीएचडी की स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको वो रिसोर्सेज भी मिलते हैं जो mm, बेसिकली एक स्टूडेंट को एक्सपेक्ट करता है रिसर्च के साथ, जो mm, जैसे कि रिसर्च ग्रांट्स और ये mm, सब। mm, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब सेटल हो जाते हैं वहाँ पे कि mm, आपको है ना, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अप्रूव हो जाते हैं वो इजीली। mm, mm, आपको अलग से इंडिया में क्या होता है सर कि आपका पेपर जैसे यूएस में एक्सेप्ट हुआ, mm, तो आप है ना मल्टीपल मल्टीपल स्टार्टअप से बात करोगे कि हमें mm, फंड कर दीजिए, आप मल्टीपल ग्रांट्स से mm, अप्रूवल लोगे, जैसे कि इंडिया में अप्लाई mm, करना होता है इन सब ग्रांट्स के लिए, राइट? mm, अगर आपका कहीं पेपर पब्लिश हो रहा है और आपको mm, जाना है उसकी mm, फंडिंग के लिए, बट वहाँ पे यूनिवर्सिटी इटसेल्फ फंड्स यू। तो mm, वहाँ पे ये फंड्स और रिसोर्सेज का क्रंच नहीं है बेसिकली। mm. Okay, same now from direct PhD in IITs, which you explored, यस to direct PhD in Europe. यस सर। So you may be having knowledge about that. हम्म। So how direct PhD opportunities in abroad are? कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं यूनिवर्सिटीज देती हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग पीएचडी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमटेक? पीएचडी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमटेक और बीटेक सर। So I'm asking like PhD you can do after MTech also and then यस there's a direct PhD also. यस सर यस तो सर यस जैसे सर। डायरेक्ट पीएचडी इंडिया में कंसेप्ट आया राइट एंड आपने ज्वाइनिंग किया था उसके अंदर, राइट सर। तो वो एक्सपोजर आपको है। अब मैं राइट ये सर। पूछ रहा हूँ कि यूरोप के अंदर भी डायरेक्ट पीएचडी का अपॉर्चुनिटीज क्या है हम्म। और क्या, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अगर किसी ने एमटेक कर रखा और वो पीएचडी में जाना चाहे और ओके डायरेक्ट पीएचडी में जाना चाहे, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके, तो सबसे पहले तो ये कि अगर किसी ने एमटेक कर रखा है तो वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से हम्म, मतलब हो जाएगा, उसका एडमिशन बहुत इजीली हो जाएगा। थ्रू आउट एमटेक प्रोफाइल इज गुड एंड बैचलर प्रोफाइल इज आल्सो गुड, हम्म, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही हम्म, नहीं। इट्स जस्ट कि अगर उन्होंने एमटेक में थीसिस अच्छा लिखा है और एमटेक में रिसर्च वर्क किया है प्रोफेसर के साथ और ये सब, तो हम्म, इट्स ओके। बट चैलेंज है डायरेक्ट पीएचडी जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। हम्म, वहाँ पे चैलेंज ये है कि बीटेक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कोर्स वर्क कंप्लीटेड नहीं होता, हम्म, और वहाँ पे ये कि 3 इयर्स का पीएचडी प्रोग्राम है, हम्म, तो वो लोग एक्सप्लिसिटली कोई कोर्स वर्क रन नहीं करते बीटेक हम्म, सॉरी पीएचडी वाले बच्चों के लिए। हम्म, तो इसीलिए ये चैलेंजिंग है बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए यूरोप हम्म, में पीएचडी करने जाना, कि हम्म, बीटेक करके डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन करना, तो हम्म, ये वहाँ पे ऑफर नहीं होता है बेसिकली हम्म, ज़्यादा। हम्म, बट ये है कि आप डेफिनेटली आप इंटर्नशिप करें वहाँ पे,
जैसे बीटेक के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं या एमएस कर सकते हैं वहाँ से, हम्म, और वहाँ पे फिर प्रोफेसर के साथ आप कितना अच्छे हम्म, से काम करते हैं, कितने ओके, आपके आप डेफिनेटली आपको प्रूव करना पड़ेगा स्टार्टिंग के डेज में हम्म, कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप हम्म, हार्ड वर्किंग के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं। हम्म, तो अगर आप प्रूव करते हैं ये चीज़ें, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होती हैं। हम्म, बट डायरेक्ट पीएचडी एज़ सच यूरोप में नहीं है। Okay. So, Salim, then what about the fee structure and all for masters? कि अगर किसी बच्चे का जरा भी पैसा नहीं है तो कैन ही एस्पायर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम अब्रॉड? डेफिनिटली सर, डेफिनिटली। ओके, आई वुड से अभी के लिए एट प्रेज़ेंट तो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे आप फ्री मास्टर्स कर सकें। हम्म, अनलेस 1-2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी मीडियोकर हैं, हम्म, बट अगर आप सोच रहे हैं कि ओके, रादर देन स्पेंडिंग क्रोर्स एंड टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक फॉर मास्टर्स, हम्म, फॉर एग्जांपल यूएस एंड कनाडा, हम्म, one can think of finishing their masters around 12 lakh Indian rupees ओके, और 20 lakh Indian rupees अराउंड। हम्म, एंड मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स इतना तो सेव सेव भी कर लेते हैं जनरली, जब वो 1-2 साल अपने बीटेक के बाद जॉब करते हैं, राइट? हम्म, तो मुझे लगता है कि इतना तो सेविंग्स रहता भी है उन स्टूडेंट्स के पास। हम्म, बट एनीवेज, इर्रेस्पेक्टिव टू दैट, यूरोप में एक्सपेंसेस कम है, हम्म, एंड उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और हम्म, अच्छे क्यूएस रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे। हम्म, और मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं कि जर्मनी ही एक अकेला यूरोप में डेस्टिनेशन है मास्टर्स के लिए, हम्म, बट ऐसा नहीं है। हम्म, आप स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे और डेनमार्क, ये सब भी एक्सप्लोर करने चाहिए, बिकॉज़ हम्म, वहाँ पे आप डेफ़िनेटली थोड़ा ज़्यादा पे करेंगे जर्मनी से या फिर हम्म, हम्म, इटली से, हम्म, बट आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहेंगे वहाँ पे। हम्म, Not only life standards, but quality of education along with that, the research opportunities and job हम्म, opportunities. हम्म, तो फ़र्क पड़ता है सर, एंड at the end Europe is open for all the students, हम्म, even if you go to Sweden or हम्म, you go to Italy or you go to Norway, हम्म, it stays open, so you हम्म, can always apply it to all the countries there. Hmm. And what about ROI, Salim? What was the return on investment of the money you spent? सर आई मीन, ये तो क्वेश्चन अगर है तो जैसे कि हम क्वालिटी लाइफ अगर आप सोचते हैं, तो क्वालिटी लाइफ कम्स विद मनी, Hmm. एंड मनी आपके पास डेफिनेटली होगा। Hmm. ऑलरेडी आप अगर ये सोचते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी लाइफ अच्छा है, Hmm. विच वी ऑल Hmm. नो ऑलरेडी, तो Hmm. वहाँ पे पैसे का तो ऐसा कोई क्रंच नहीं है। और Hmm. आरओआई की बात है तो वो आप आई गेस जितना स्पेंड करोगे वो बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे, Okay. Hmm. बहुत जल्दी, मतलब Hmm. इट्स जस्ट कि वहाँ पे आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आप एक्सपेंसेस Hmm. करने ही पड़ेंगे आपको। Hmm. तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती नहीं है तो नहीं है, मतलब Hmm. आपको खर्चा करना पड़ेगा। Hmm. बट एट द सेम टाइम यू विल बी अर्निंग मोर, एंड थोड़ा-सा ऐसा रहता है कि अगर जैसे पीएचडी कर रहा है तो इंसान, उसके पास सेविंग्स अच्छी हो सकती है, Hmm. बट जो मास्टर्स कर रहा है उसके पास तो कोई सेविंग नहीं हो पाएगी। Hmm. बट जॉब करेगा तो बहुत अच्छे से सेविंग्स कर पाएगा। Hmm. Acha, can you name some countries in Europe which are very good for Indian students फॉर मास्टर्स, for masters and PhD both? okay, for PhD, I think Denmark is the best Mm-hmm. country, Okay. because they have a lot of fundings, I guess, and Hmm. they have recurring PhD programs, Okay. तो Hmm. वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हैं। Okay. और अगर आपको मास्टर्स करना है तो डेफिनेटली जर्मनी अच्छा है। Okay. Okay, so if one country you have to say Germany for MS यस, and PhD Denmark. यस, Okay, यस। wonderful. And Sanem, now we have come to almost an end of this wonderful session. You have already mentored so many students, यस। and we have mentored, ordinary profile students, and we ट्रू, have sent them to very good universities. ट्रू, ट्रू। So, any message you want to give to students who are listening to you? Okay, my last message is everyone have their own power of capability. Hmm. So you should not think of yourself with low confidence, or like you cannot be Hmm. there in the good QS ranked university. Okay, Hmm. believe me, we have had many students who have gone through extremely good universities, Hmm. rather than their profile. Hmm. So it's very necessary to apply with confidence and Hmm. proper documents. That's Hmm. the thing. Wonderful. Thanks a lot, Sanem, for your time. Thank you, sir. And I look forward to meet you sometime in Norway only. Definitely, sir. Thank Definitely. you. Thank Thank you. you so much.